students, how are you? In our last class, we have discussed inductive effect. What is inductive effect? The polarity produced in a molecule due to the presence of electronegative atom or group of atom is known as inductive effect. For example, if I am taking a molecule CH3, CH2, CH2, Cl. In this molecule, here the electronegativity of chlorine is more than electronegativity of carbon. In that case, the shared pair of electron of this bond move towards the chlorine atom because the chlorine atom has more electronegativity. So, the partial negative charge created on the chlorine atom and partial positive charge created on the carbon atom. And due to the partial positive charge on this carbon atom also gets polarized and become positive charge. Here the meaning of double delta means that the positive charge created here is more than positive charge created here. And in this way, this carbon atom also gets polarized and this positive charge created here is less than this positive charge created here. In this way, whole compound become polarized and there is some different electron densities on different atom occurred. In this way, this compound become a polar molecule, and in a polar molecule, reaction is carried out easily. So this effect is known as the inductive effect. Now we are going to discuss about the application of inductive effect. What is the application of inductive effect? We will study the application of inductive effect in these four heads. First, application of inductive effect on explaining the stability of reaction intermediate. Second, the application of inductive effect on the dipole moment of molecule, because due to the inductive effect molecule gets polarized. So what is the dipole moment of the molecule in accordance with inductive effect? Acidic character of compound can also be explained by the inductive effect. And last, the basic character of compound is also explained by the inductive effect. Okay. So let us move on our first application, which is the stability of reaction intermediate. Before explaining the application of inductive effect in the stability of reaction intermediate, what is reaction intermediate? Reaction intermediate are those species. Reaction intermediate are those species. रिएक्शन इंटरमीडिएट वह स्पीशीज होती है जो रिएक्शन के दौरान बनती है. कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जरूरी नहीं हो कि वो वन स्टेप में कंप्लीट होती हो, उसके बहुत सारे स्टेप होते हैं. तो किसी एक स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और वो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वापस से चेंज होके प्रोडक्ट बनाता है. तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है. अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा एक्सटेंट में होती है तो हमें वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी मिलती है. तो हम इंडक्टिव इफेक्ट का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर इफेक्ट है वो देखने वाले हैं. अब रिएक्शन इंटरमीडिएट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल और फ्री रेडिकल. बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट को हम कहाँ पे यूज करेंगे?
चार्ज्ड स्पीशीज पे, तो हम जो रिएक्शन इंटरमीडिएट चार्ज बन रहे हैं बीच में, मतलब पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, उसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। Now we are going to discuss the stability of carbocation. What is carbocation? When in the reaction, during the reaction, when positively charged carbon atom species created, then this species is known as carbocation. इस कार्बोकेटायन की इस सीरीज में आप देखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मिथाइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप कार्बन एटम पे इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे प्लस चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, कम इलेक्ट्रॉन से इसके रेस्पेक्ट में कम होगा, और भी कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके रेस्पेक्ट में और भी कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकेटायन की सबसे ज्यादा होगी देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन की। तो हम यहाँ पे हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। नेक्स्ट केस, हियर यू कैन से दैट this is sp2 hybridized carbon atom, this is sp3 hybridized carbon atom, this is sp2 hybridized carbon atom, and this is sp hybridized carbon atom. इस स्पीशीज में अब आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की ज्यादा होती है, तो प्लस चार्ज उस एटम पे स्टेबल नहीं होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो इस कार्बोकेटायन की कम होगी, उससे ज्यादा इसकी होगी, और ये उल्टा रहता है, इसकी सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज्यादा होगी। इन नेक्स्ट केस यहाँ पे मैंने देखो 3 कार्बोकेटायन फॉर्म किए हैं, उसमें एक में 3 ट्रिटियम लगे हुए हैं, ये ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो जो ट्रिटियम है वो सबसे हैवीएस्ट आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो जो हैवीएस्ट आइसोटोपिक एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की पावर ज्यादा होती है। तो जो ट्रिटियम है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर रिपेल कर रहा है, ड्यूटेरियम उससे कम कर रहा है और हाइड्रोजन उससे भी कम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, Ct3+ की, देन Cd3+, देन CH3+। इन दैट केस मैंने इसको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। इट मीन्स जो बॉन्ड एंगल इधर की ओर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन एटम की बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। यहाँ से इसका एंगल ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी। तो इस तरह से हम इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख सकते हैं। अब हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखो ये माइनस चार्ज कार्बो एनायन बना रहा है। अब हम यहाँ पे वापस से वही जो मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, एक तो नेगेटिव कार्बन, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे केवल एक ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 1 डिग्री मिथाइल, 1 डिग्री कार्बोकेटायन की, कार्बो एनायन की। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन 2nd डिग्री, देन 3rd डिग्री। इस केस में भी हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन एटम की ज्यादा है, तो जो जिस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है देन ये।
उसके बाद में सेम केस मैंने लिया है ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ट्रिटियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी देन इसकी। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा, यहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उससे कम इसमें और फिर सबसे कम पेंटा एनायन में। अंडरस्टैंड? Next, move on the second application, which is dipole moment of molecule. What is dipole moment? When electronegative atom present in a molecule, then molecule gets polarized. And मैं एक simple example ले रही हूँ HCl का and H, या फिर एक एग्जाम्पल है Cl2 का। इस केस में दोनों एटम सेम हैं, तो इसके जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इक्वली शेयर्ड है। जब इक्वली शेयर्ड है तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन, नेगेटिविटी हाइड्रोजन की क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। जब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव हो जाएंगे, क्लोरीन एटम की ओर मूव हो जाएंगे, और इससे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और जब भी कभी दो डाइपोल डिफरेंट चार्जेस के होते हैं तो उनके बीच में डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट आपने डिटेल में पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से शो करते हैं और उसको हम उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू चार्ज। चार्ज का हम मॉड्यूलस लेंगे, कोई सा भी चार्ज हो, मतलब चार्ज उसके ऊपर कितना है ये देखना है हमको, उसकी उसके नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को नहीं देखना है, केवल उसकी मैग्नीट्यूड को ही देखना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इनटू चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल ले रही हूँ, CH3CN, CH3OH, CH3NO2। इन सारे जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CN ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। और इन दैट केस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड NO2 ग्रुप। अब जब हम यहाँ पे, मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवाया था, इसका ऑर्डर लिखवाया था कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर किस किस ग्रुप का कैसा रहेगा, तो हम उस सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले तो CN, OH और NO2 तीनों माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को जनरेट करते हैं। यहाँ पे इसका डाइपोल अगर हम निकालेंगे तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो जब हम इन तीनों का रिजल्टेंट डाइपोल निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। और ये CN है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है, तो इस बॉन्ड का डाइपोल भी इस डायरेक्शन में होगा। मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इन दोनों के डाइपोल मोमेंट के सम के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखेंगे, जब हमने ऑर्डर लिखा था माइनस आई इफेक्ट का, उसमें देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, OH सबसे बाद में आ रहा था, OH ग्रुप, उसके बाद में CN ग्रुप और उसके बाद में NO2 की माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करेगा अपनी तरफ, NO2।
उसके बाद में CN और उसके बाद में OH। इसका मतलब अब इसकी रिएक्टिव, इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा डायपोल मोमेंट का? इसका ऑर्डर होगा, अगर मैं इसको A, B और C नाम दे दूं तो C का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उसके बाद B का और उसके बाद C का, A का और B। इस तरह से हम डायपोल मोमेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं with the help of inductive effect। एक एग्जांपल और लिखती हूँ। ये एग्जांपल बड़ा फेमस है, CH3Cl एंड CH3F। किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? देखने में लगता है कि CH3F का डायपोल मोमेंट ज्यादा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब चार्ज फैक्टर इसका ज्यादा है। लेकिन जब हमने पीरियोडिक टेबल में देखा तो ये फाउंड किया कि यहाँ पे जो क्लोरीन है उसकी जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा होती है फ्लोरीन से। तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसकी बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब जो डिस्टेंस होगी डायपोल के बीच में, वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट हो जाएगा और इसके कारण से क्लोरीन का डायपोल, CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होगा। ऐसे होना क्या चाहिए था? CH3F का डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट हो रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट हो रहा है और डिस्टेंस फैक्टर ही क्या बना रहा है? डायपोल मोमेंट को ज्यादा बना रहा है। तो इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमको यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है वो एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो हम एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दोज कंपाउंड which give H plus ion, which give H plus ion or proton. That type of compound is known as acid. अगर मेरे पास कोई एसिड है, फॉर एग्जाम्पल HA, अगर यहाँ पे ये डिसोसिएट हो रहा है तो हमें क्या दे रहा है? H plus ion plus A minus ion. What is A minus? अब ये देखो, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वीक एसिड होते हैं और इनकी रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। तो मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल साइन का यूज किया है। उसके बाद में अब ये A क्या है? A इस एसिड का कंजुगेट बेस है, ये प्रोटॉन निकाल रहा है और ये कंजुगेट बेस A माइनस बना रहा है। जितना स्टेबल ये होगा उतना ही ज्यादा ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर इस आयन की ज्यादा होगी, कंजुगेट आयन की, तो ये उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब जो इसका इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको क्या देखना है कि जो कंजुगेट बेस फॉर्म हो रहा है वो कितना स्टेबल है। जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस बनाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने HCOOH लिया, इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? H प्लस HCOO माइनस। ये इसका, इस फॉर्मिक एसिड का कंजुगेट बेस है, ये फॉर्मेट आयन। ठीक है, तो जब हम, अब हमें 3-4 तरह के एसिड दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे? उसकी स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से फाइंड करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वो एसिड कैसा है? ज्यादा स्ट्रेंथ है उसकी, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंजुगेट बेस फॉर्म करेंगे। यहाँ पे कंजुगेट बेस, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। अब हम देखेंगे माइनस चार्ज कौन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे केवल एक ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो पहले एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है,
और फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वैसे तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, पर यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये उससे कम स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, A इज लेस देन B इज लेस देन C। इसको A, B और C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फिर हम कंजुगेट बेस बनाएंगे, ये कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस। फिर वापस देखेंगे हम कि यहाँ पे देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है, मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो क्या बनेगा, FHHCOOH। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CClHHCOOH, CHHBrCOOH, CIHHCOOH। अब इसका हमने कंजुगेट बेस बनाया। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं तो हम फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की उससे भी कम। जब हम ग्रुप पे जाते हैं तो ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट है वो भी इसी ऑर्डर में रहता है। तो इसी ऑर्डर में रहता, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा, सबसे ज्यादा पुल करेगा, तो ये क्या करेगा, माइनस चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा, और जो ये आयोडाइड कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम एसिडिक बिहेवियर को कंपेयर करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और लिखती हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, पहले ही लिख देती हूँ फिर सॉल्व करवाती हूँ। Let us move on to some more example for relative strength of acids. सबसे पहले हम इनको कंजुगेट बेस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखो इससे के पास वाले कार्बन पे 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे CH2Cl, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम है जो कि माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, और यहाँ पे एक भी क्लोरीन एटम नहीं है जो माइनस आई इफेक्ट डाल रहा हो। तो यहाँ पे डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगी, ठीक है। तो D आएगा सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही बनेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक A, B, then C, then D. Let me clear the board to make the space. Now move on to the next example, which is, देखो this is very important example। यहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसको भी कंजुगेट बेस में ही चेंज करेंगे। यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। यहाँ पे देखिए जो CH3 ग्रुप है वो, उसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर कोई भी ऐसा एटम नहीं जुड़ा हुआ है जो माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट डाल रहा हो। यहाँ पे इस कार्बन एटम पे एक एटम है जो कि माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, वो है क्लोरीन। यहाँ पे एक ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर नहीं करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे
जो हमने ग्रुप्स के ऑर्डर बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो उसमें Cl ग्रुप की माइनस आई इफेक्ट OH ग्रुप से ज्यादा होती है, तो माइनस आई इफेक्ट Cl सबसे ज्यादा डालेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल B होगा, देन C, देन A। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही होगी, B सबसे ज्यादा एसिडिक, देन C, देन A। नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को डिटेलिंग करते हैं। देखो ये जो कंपाउंड है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AC डबल बॉन्ड OOH, इसको हम लिख सकते हैं CH C डबल बॉन्ड OH। इतनी ज्यादा डिटेलिंग की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम केवल CH3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे CH2 Cl C डबल बॉन्ड OH। इसका कंजुगेट बेस होगा माइनस प्लस, इसका कंजुगेट होगा माइनस प्लस, और इसका कंजुगेट बेस होगा माइनस प्लस। अब इसकी हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज कर रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइनस आई और प्लस आई से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो। यहाँ पे इस कार्बन एटम पे ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे CH3 के साथ में Cl जुड़ा हुआ है, तो CH3 ग्रुप तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, पर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से क्लोरीन एटम कम कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा प्लस आई इफेक्ट का वो इससे कम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि ये इसको आगे नहीं आने देता स्टेबिलिटी में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा C, देन A, देन B, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये अब थर्ड नंबर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल एसिड कौन सा होगा, C, देन A एंड देन B। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट वन, में भी आप कंपैरिजन करेंगे इस कार्बन एटम से। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो किस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड O OH CH3। इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो क्या होगा, CH2 COOH Cl, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH COOH। इसको थोड़ा डिटेलिंग में लिखना पड़ेगा, CH3 CH3। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन ग्रुप को हम अलग अलग लिख देते हैं। चलो इसका कंजुगेट बेस बनाइए, माइनस माइनस माइनस। अब देखो ये जो कार्बन है इस पे दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाले ग्रुप लग रहे हैं, माइनस आई वाले। इस वाले कार्बन एटम पे कोई भी एटम नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और डेफिनेटली ये वाला डिक्रीज कर रहा है। तो डेफिनेटली ये वाला जो एसिड है C वाला, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी C की। अब यहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो उसके बाद में आ जाएगा B, देन A, क्योंकि A तो इंक्रीज कर रहा है, मिथाइल ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, तो सबसे ज्यादा कम स्टेबल कौन सा होगा, A। इज इट ओके। यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर था, क्योंकि इसके पास वाला कार्बन, तो हमको इसके पास वाले कार्बन से ही कंपेयर करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने एरोमेटिक कंपाउंड का दिया है। देखो यहाँ पे मैंने ग्रुप भी चेंज कर दिए हैं, 2 पे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग रहा है और 1 पे फिनोलिक ग्रुप लग रहा है। तो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेफिनेटली सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, तो ये तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे आखिरी में चली गई इन स्पाइट ऑफ हैविंग NO2 ग्रुप, जो कि NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर माइनस एम इफेक्ट से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। in spite of having NO2 group at para position, still CO group is stronger acid। so हम यहाँ पे कंपैरिजन में इसको सबसे लास्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे B की स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो गई, अब कंपैरिजन इन 2 में है। यहाँ पे देखो ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो। यह मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। हाउएवर इट इज अटैच्ड ऑन पैरा पोजीशन, स्टिल इट विल बी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो माइनस चार्ज को स्टेबल नहीं करेगा, तो यहाँ पे C सेकेंड नंबर पे आ जाएगा और A सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A is greater than C is greater than B। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड्स, अब हम मूव कर रहे हैं रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो सबसे पहले तो कंपाउंड बेसिक कब होता है, अ कंपाउंड इज सेड टू बी बेसिक इफ इट इज कैपेबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन और कैन इजीली प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर कोई कंपाउंड इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट को किस तरह से, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को किस तरह से अप्लाई करेंगे कि हमको यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर कर सके। अब यहाँ फर्स्ट कंपाउंड में आप देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पे इंक्रीज कर रहे हैं। अगर केवल हम इन तीनों कंपाउंड को कंपेयर करें तो व्हाट हैपन, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इससे, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो भी इसी तरह का ऑर्डर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पे बढ़ा रहे हैं। नाइट्रोजन पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी उतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर देता है और बेसिक बिहेवियर इसका चेंज ज्यादा हो जाता है। तो जब ये ज्यादा बेसिक हो गया तो यहाँ पे हम ऑर्डर लगाएंगे तो सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा बेसिक कौन है ये, इससे ज्यादा कौन है ये, और इसके बाद में ऑर्डर आएगा इसका। और यहाँ पे हम देखते हैं जो क्लोरीन एटम है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा तो नाइट्रोजन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा और इसकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे भी कम हो जाएगी। तो जब हम इस सब कंपाउंड में इसको कंपेयर करेंगे तो ये सबसे पहले आ जाएगा, मतलब इसको हम कहाँ पे रखेंगे ऑर्डर में, सबसे कम बेसिक। ये इन चारों इन कंपाउंड्स की देखो। इस लास्ट एग्जांपल में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटेलिंग कर दी है। अब इस डिटेलिंग स्ट्रक्चर में हम समझेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इस यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जिसमें प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। इस वाले केस में हम देखेंगे जो ये
लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ में कंजुगेशन में आ जाते हैं। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है डोनेट होने के लिए, ये कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके साथ में 4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको पता है ना। तो ये कंजुगेट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये इतने इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये 2 बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, ये दोनों कार्बन एटम, तो पहली बार इसके साथ में कंजुगेशन में आएंगे और फिर बाद में इसके साथ में भी कंजुगेशन में आएंगे। इस तरह से इसके बहुत सारे कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेंगे। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन इस 2 पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर हम इन सबको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन इजीली इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा? CH3 NH2, उससे कम NH3, उससे कम एनिलीन, और उसके बाद में डाइफिनाइल एनिलीन। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी को ऑर्डर लगाएंगे। जब भी इस तरह का बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर आता है आपको डिटेलिंग करनी है स्ट्रक्चर की और फिर ही आंसर निकालना है, अदरवाइज आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को भूल जाएंगे और सही नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आज हमने पूरा इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन देखने में किताबों में ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल को डील करना इससे कोई मतलब की बात नहीं बनती है। आप किताबों में क्वेश्चंस देखें और सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज थी कंसेप्ट सीखना कि हमको किस तरह से कंपैरिजन करना है। यदि हमको 4 तरह के एसिड दिए हों और उनकी स्ट्रेन को कंपेयर करना है तो हम किस तरह से करेंगे। यदि हमको 4-5 तरह के बेसिस दिए हैं उनको कंपेयर करना है तो हम किस तरह से करेंगे, और रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम किस तरह से कंपेयर करेंगे और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वापस नया टॉपिक लेकर, और नया टॉपिक होगा हमारा रेजोनेंस। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक and share the video to your friends. Thank you and see you for next video.